A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new chapter from our literature portion, that is the ailing planet, the green movement's role. Here the ailing planets means the planet which is just ill, right? And the green movement's role. How the green movement has just recall all the activity of the planet, and it turns up to a very good because our planet was just ill. And which one is our planet? Our planet is Earth, and there was a green movement which plays an important role to improve the health of our planet, right? It has been written by Nani Palkiwala, whose full name was Nani Ardeshir Palkiwala, who just got born in 1920 and got died in 11 December 2002. His death and birth was just both in Mumbai. He got his education from the University of Mumbai and St. Xavier College, that is autonomous. He just got some of the awards. One of the known award was a Padma Vibhushan. So these are some of the traits of our Nani Palkiwala, and even there is a kind of stamp, and he was a jurist, Indian jurist you can say. So he was also being an Indian jurist and liberal economist. He gave us a prolific ideas throughout this lesson, that is the ailing planet, the green movement's role. In this lesson we will come to know about the green movement's role to save the earth. As this chapter just focuses on the factors that are responsible for the declining health of our earth, that is the ailing planet. And the chapter was originally an article, you can say, written by Nani Palkiwala, which was published in the newspaper The Indian Express on November 23, 1994. Right? So the writer discussed the green movement, how a zoo in Zambia declared a human being as world's most dangerous animal. The writer also focuses on overpopulation, deforestation, and what should be our responsibility towards the environment of our earth. So this all has been just issue raised by our Nani Palkiwala in this article, right? So if I will start this very lesson, then we have to notice some of the meanings. All these 8 meaning we have to just confer it throughout the lesson. So make a kind of reading out of this and find out the meaning, and we will come to know we will go through the lesson and come to know about the difficult word meaning. After that we come to know that the following article was written by Nani Palkiwala. So this lesson is an article, remember this, and published in the Indian Express on 1994. We have just already been discussed all these things, and this has been raised the issue regarding the declining health of the earth continuing to have relevance. So let's get started with our lesson. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. कोई भी ऐसा मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ है जिसने पूरी मानव जाति को अपने ग्रिप में ले लिया हो, अपनी पकड़ में ले लिया हो, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया था, जो आज से 25 साल पहले शुरू हुआ था. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंड इन न्यूजीलैंड. यानी कि अर्थ को बचाने के लिए इससे पहले कभी कोई भी पार्टी बनाई ही नहीं गई थी. 1972 में पहली बार हेल्थ यानी अर्थ की हेल्थ के लिए फोकस दिखाई दिए थे कई देश, जिनमें से न्यूजीलैंड में एक पार्टी फाउंड की गई थी जिसे हम वर्ल्ड की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बोलते हैं, जो 1972 में बनी थी. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. तब से ही मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. We have shifted one hops irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. इस मूवमेंट ने हमारे जो
मैकेनिस्टिक व्यू था, मेटेलिस्टिक व्यू था, यानी कि हम अर्थ को सिर्फ एक मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे थे, उसको चेंज कर दिया उसके होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में। इट मीन्स कि वर्ल्ड में हमारा इकोसिस्टम कितना ज़रूरी है और किस तरीके से हमारे लिए ये चीज़ें पवित्र हैं। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्टिव एज रिवोल्यूशनरी एज दैट। इसने ह्यूमन परसेप्शन में एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सोच विचार लाने का काम किया और इसे इंट्रोड्यूस किया था कोपरनिकस ने, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द प्लांट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब कोपरनिकस कौन था? वो महान इंसान जिसने 16th सेंचुरी में ये कहा था अर्थ और अदर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन उससे पहले क्या माना जाता था कि सन अपनी अर्थ के अराउंड घूमा जाता है, बट पहली बार जब कोपरनिकस ने ये बात कही थी तो उसको भी एक फूल समझा गया था। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. पहली बार वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस में ये चीज़ आई थी, इनके ध्यान में एक चीज़ डाली गई थी ग्रीन मूवमेंट के तौर पे कि अर्थ खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। एक ऐसी विचित्र चीज़, ऐसी विशाल चीज़ जिसका हम एक हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। इसकी खुद की एक नीड्स है, वाइटल प्रोसेस है, विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, जिसकी हमें ख्याल रखना चाहिए। वी शुड बी टेक केयर ऑफ इट। सो द अर्थ विटल साइंस रिवील ए पेशेंट एंड द डिक्लाइनिंग हेल्थ। अब जितने भी साइन जो बीमारी वाले साइन हमें अर्थ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम नानी पलकीवाला ने अर्थ को एक पेशेंट बुलाया है जिसकी हेल्थ काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है। We have begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy future generation. हमें आज से ही इन सारी चीज़ों को संभालना पड़ेगा ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को इसका ट्रस्टी बना सकें, ताकि हम उनको जवाब दे सकें कि हमने भी आपके लिए अर्थ को सही सलामत रखा है, जैसे हमने अपने पूर्वजों से लिया था इसे। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? ये वो डेवलपमेंट है जिसमें आप अपने हर तरीके की, यानी कि अर्थ से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट में आप भागीदार बनोगे। सो दिस डेवलपमेंट आर पॉपुलराइज्ड, ये 1987 में पॉपुलराइज्ड हुई। किसके द्वारा? WCE के द्वारा, दैट इज़ वर्ल्ड्स कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की तो तगार पे। सो इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइन द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। अब हम इस रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारी प्रेजेंट की नीड है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। अब हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा ताकि वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, कि हम अपने फ्यूचर नीड्स कि हम अपने नेचुरल वर्ल्ड के जो स्ट्रिपिंग आउट कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज को बचाना चाहिए फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए। अब हम एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से एक लुसाका ज़ाम्बिया, जो लुसाका एक जगह है, वहाँ एक ज़ू है ज़ाम्बिया में, वहाँ एक केस है, देयर इज़ अ केस, वहाँ नोटिस लगा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। वहाँ क्या नोटिस लगा हुआ है कि इस पिंजरे में सबसे खतरनाक पशु है। जब आप इनसाइड देखते हो केज के, देन देयर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, जहाँ आप अपने आप को देखते हो। देन वो कहता है थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब क्या है कि अब वो थैंक करता है उन एफर्ट्स का, नंबर ऑफ एजेंसीज का, जो बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या करती है, मतलब बहुत सारी एजेंसीज़ को जो डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, जिन्होंने एक नई अवेयरनेस फैलाई है इस मोस्ट डेंजरस एनिमल से बचने के लिए। बिकॉज इंसान एक ऐसा पशु है जिसकी अपनी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और वो किसी भी हद तक जा सकता है उन इच्छा को पूरा करने के लिए। He had realized the wisdom of shifting from a system based on dominating to one based partnership. अब हमें डोमिनेटिंग नहीं बनना चाहिए। इंसान को लगता है कि अर्थ उसकी है, बट ऐसा नहीं है। अब हमें पार्टनरशिप पर बेस्ड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हर एक एनिमल या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकें, ना कि उन पर हुकूमत कर सकें। हियर
Scientists have catalogued about 1.4 living species with which mankind share the earth. Scientists ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1.4 लिविंग स्पीसीज हैं, जिसके साथ मैनकाइंड जो है वो अर्थ को शेयर करता है. Estimate vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about the 300 million other species will still languish unnamed in ignominious darkness. अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ लिस्ट का पता है कि 1.4 मिलियन तो वो स्पीसीज़ हैं जो अर्थ के जो ह्यूमन काइंड के साथ अर्थ को शेयर कर रही हैं, बट ऐसी बहुत सारे अनगिनत और ऐसी जिसका नाम ही नहीं रखा गया, ऐसे बहुत सारे यू कैन से स्पीसीज़ हैं जिन्हें अभी तक डार्कनेस में ही रहना पड़ रहा है बिकॉज हमें उनकी नॉलेज नहीं मिल पाई है. सो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी, द अर्थ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ह्यूमन बींग बिकॉज दिस इज़ आल्सो द प्लेस वेयर अदर मिलियन ऑफ द लिविंग स्पीसीज यूज टू शेयर दिस अर्थ. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment with the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. अब एक बहुत पहले इंटरनेशनल कमीशन हुआ था जो एक इंटर एलिया था जिसमें क्वेश्चन राइज हुआ था इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का. किसने राइज किया था? ब्रांडेड कमीशन नाम के बंदे ने, विच हैज जस्ट डिस्क्यूज इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसने इंडिया के एक मेंबर जिसका नाम था एल के झा को इस कमीशन में हिस्सेदार बनाया था. The first Brundtland report raised the question, are we to leave our successor a scorched plant to advancing desert, impoverished landscape and ailing environment? जब पहली बार इस कमीशन की मीटिंग हुई थी तो सबसे पहले ब्रैंडेट ने क्वेश्चन राइज किया था कि हम अपने सक्सेसर्स यानी हमारे वंशजों के लिए हम क्या ये मरुस्थल छोड़ कर जाएंगे या फिर ये अगर बंजर ज़मीन या फिर ये बीमार ग्रह. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में पॉइंट किया है अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें 4 सिस्टम होते हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड दैट इज़ क्रॉपलैंड्स. अब ये जो 4 चीज़ें हैं इनसे हमारी पृथ्वी का बायोलॉजिकल सिस्टम जो है सही रहता है. एंड दे आर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का बेस है. सो इन इंडिया, इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, दिस 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक. अगर हम बात करें सप्लाई के फूड की, देन वहाँ पे 4 ऐसी चीज़ें हैं प्रोवाइड वर्चुअली, जो ये 4 चीज़ें हमने अभी बात की हैं जो हमें रॉ मटेरियल में जो हमें डायरेक्ट हमें अर्थ से मिलती है, बट कुछ एक ऐसी हैं जिन्हें हमें ड्राइव सिंथेटिकली करना पड़ता है, जैसे कि मिनरल एंड पेट्रोलियम जो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते. इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन क्लेम्स करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो एक ऐसी लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पर इनके लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है. व्हेन दिस हैपन, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, grasslands are converted into barren wastelands and cropland deteriorates. या वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि ये चारों चीज़ें ख़त्म होगी तो हमारी फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगी, फिशरीज ख़त्म हो जाएंगी, ग्रासलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे और ग्रासलैंड्स बैरन लैंड में बदल जाएंगे एंड क्रॉपलैंड्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे. In a protein conscious and इस प्रोटीन कॉन्शियस देश में जिसको हमेशा प्रोटीन की बहुत ज़्यादा भूख रहती है, वो ओवर फिशिंग जहाँ पर एवरीडे कॉमन हो गई हैं. अब उनका क्या है, जैसे फ़िश लिवर ऑयल हम निकाल लेते हैं प्रोटीन के कॉन्शियस लोग, तो वो क्या करते हैं हमारे फिशरीज को ख़त्म कर रहे हैं. इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जिन पुअर कंट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं ताकि वो अपनी कुकिंग के लिए फायरवुड जमा कर सकें. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव
कई बार तो ऐसी जगह भी हमें देखी हैं कि जहाँ पर फायरवुड ज़्यादा एक्सपेंसिव है किसी अदर चीज़ से. दैट वट गोज़ अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड इट. इट मीन्स अब ये हद से ज़्यादा महंगी हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ये अलाउ नहीं है दैट यू विल कट द ट्री. सिंस द ट्रॉपिकल forest is in the word Dr. Murray, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब उनके वहाँ वो जो फायरवुड्स है वो महंगी वो इसलिए है क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है और जो मालिक होते हैं वो उन लकड़ियों को हद से ज़्यादा हाई रेट पे बेचते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकें. सो आफ्टर दैट अब हमारे पास डॉक्टर मायर की स्टेटमेंट है. वो ये कहते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि पावर हाउस है इवोल्यूशन का, जहाँ से हमारी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है ह्यूमन बींग्स की, उसके पास बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आज डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट बन रही हैं. सो इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डिज़र्ट फॉलोज. जहाँ जहाँ पर भी मैनकाइंड ने अपना प्रीसीड्स किया है वहीं वहीं जो लैंड है वो बंजर बन गई है. सो द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिनोमी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year. अब पहले के मुकाबले आज के टाइम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 40 to 50 million acres a year में इरोड कर दिया जाता है, उसे साफ कर दिया जाता है. एंड ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग depriving the soil is an important nutrient fertilizer. So the World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected world fuel wood demanding in the year 2000. अब वर्ल्ड बैंक ने इस बात का एस्टिमेटेड किया है कि हमें 5-fold की बहुत ज़रूरत है, यानी 5 ऐसे तरीके इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है जिनसे हम अपने जो फ्यूल वुड है 2000 ईयर की जो डिमांड है उनको फुलफ़िल कर सकें. जेम्स पैथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेज द अदर डे. जेम्स पैथ कहते हैं वी वर सेइंग दैट वी वर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड. वो कहते हैं कि हम 1 एकड़ में हम कितना खोते हैं फॉरेस्ट को, 1 सेकेंड में हम 1 एकड़ फॉरेस्ट को खो देते हैं. बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड. अब ये चीज़ सेकेंड एक नाउ डेज वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द 1.5 acre in 1 second. So Article 48A of the Constitution of India provide that the state shall endeavor to protect, improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. आर्टिकल 48 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान इंडिया का, उसमें ये कहा गया है कि हर किसी कोशिश करनी है कि हर एक राज्य में प्रोटेक्ट करना है अपने वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, और उनकी चीज़ों को इम्प्रूव भी करना है. बट वट कॉज एंड लेस एंग्विश इज़ द फैक्ट. बट जो होता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. किसको गुस्सा आ रहा है? नानी पलके वालों को. इज़ द फैक्ट दैट लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट इन्फोर्स्ड इन द इंडिया. कि जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें या तो तोड़ा जाता है या उन्हें माना ही नहीं जाता. जैसे कि The Constitution says casteism, untouchability, bonded labor shall be abolished. अब Constitution कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया जाए. बट दे फ्लोरिश. वो क्यों फ्लोरिश कर रहे हैं? दिन ब दिन फूलते जा रहे हैं, फल फूलते जा रहे हैं शेमलेसली. बिकॉज इवन आफ्टर 44 year ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वो इसलिए क्योंकि कोई भी यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करता है. So, it is a recent report of the Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of the India's forest over the last 4 decades. पिछले 4 दशकों से कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट है उसमें कमेटी ने ये चीज़ भी हाईलाइट कर दी है. सो इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डाटा इज़ लूजिंग द फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres a year. अब अगर हम बात करें कितने एक साल में कितने ज़्यादा जंगलों की कटाई होती है तो वो है 3.7 million acre एक साल में. देन लार्ज एरिया ऑफिशियल डिज़ाइन एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. अब जो लार्ज एरिया है जहाँ पे हम ऑलरेडी लैंड बना चुके हैं वहाँ पर ट्रीलेस है, वहाँ पे पेड़ भी नहीं उगते हैं. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक्स. जबकि जो हमें स्टैटिक्स दिखाया जाता है उससे तो 8 गुना ज़्यादा ये नुकसान हमें भरना पड़ रहा है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा नुकसान है. नाउ
A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment had deteriorating so badly that is critical in many of the 88 countries invested. यूनाइटेड नेशन ने एक सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी की तर्ज पे लोगों को वार्न किया था कि हमारी हेल्थ, हमारी जो अर्थ की हेल्थ है वो दिन पर दिन बुरी होती जा रही है, और इस बात को 88 कंट्रीज़ ने इन्वेस्टिगेट किया था. There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of the human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion, but the world population around 1800 by the 1900 a second billion was added. अब क्या है कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हम अपने फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमें जगह चाहिए है. देन इट टुक भी, बट क्या है कि जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है वो ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पेड़ भी हैं ज़्यादा कट रहे हैं. सो अब हमारे सामने जो बात आ रही है वो ये है, that was the world population around the year 1800 और 1900 में दूसरा बिलियन भी ऐड हो जाता है, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तगाज़े से बढ़ रही है. 20th सेंचुरी में इसी नंबर में 3.7 बिलियन भी ऐड हो रहे हैं. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन. सो एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन. अब हम बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन की तर्ज पर हर 4 दिन में बढ़ रही है. आफ्टर दैट फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम हेल्थ इम्प्रूव्ड. तो फर्टिलिटी जो फॉल कर रही है इनसे, यानी कि होगी तो अगर फर्टिलिटी यानी पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो इनकम राइज होगी, एजुकेशन स्प्रेड होगी, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. बट दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट contraceptive number that continues. And the present increase in the number continues. Now here he says that the development is the best contraceptive. It means जो विकास है वो सबसे बड़ा contraceptive है, but the development itself may not be effective if the present increase the number continues. अगर ऐसे ही हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती रही तो ये सारी चीज़ें एक सपना बनकर रह जाएंगी कि जैसे कोई इनकम नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई हेल्थ नहीं होगी. सो द रिच गेट रिचर, जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा, पुअर जो है वो और ज़्यादा कंडेम होता जाएगा और हमेशा पुअर ही रहेगा क्योंकि उसके बच्चे ज़्यादा होंगे. इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि उसके पास कुछ काम होगा क्योंकि काम बचेगा ही नहीं. सो बहुत सारे वो लोग हैं जो बिना कामों के हो जाएंगे. इट इज़ नॉट सजेस्टेड, इस सजेस्ट नहीं किया जाता दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक द कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज. उनको पशुओं की तरह ट्रीट नहीं कर, ये सजेस्ट तो किया नहीं सकते उनको पशुओं की तरह ट्रीट करो और ज़बरदस्ती उनसे पॉपुलेशन कंट्रोल करवाओ. बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ कॉशन. जबकि फैमिली प्लानिंग करने से पहले फैमिली स्टेज के बारे में अब थोड़ी कॉन्शियस हो रही है, बट पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे. बट जो चॉइस थी वो यही थी कि कंट्रोल करो पॉपुलेशन को और परपेचुएशंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि आप पॉवर्टी जितना घटाना चाहते हो उतनी आप पॉपुलेशन घटाओ और जितनी आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे उतनी पॉवर्टी बढ़ जाएगी. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. अब इंडिया की एस्टिमेट पॉपुलेशन कितनी है? 920 मिलियन. सो मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी तो अफ्रीका और अमेरिका भी नहीं है. सो नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन ऑफ द इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर hungry hutman unless population control is given topmost priority. तो हर एक चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम अपने अर्थ को प्रिजर्व कर सकें और इन कंडीशंस को फॉलो कर सकें. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंड कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट ऑफ द प्लानट. बट हमने पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा अजीब सा कंसर्न देखा है बदला हुआ, जिसमें लोगों के सर्वाइवल की बात नहीं की गई बल्कि प्लैनेट की सर्वाइवल की बात की गई है कि उसे कैसे बचाया जाए. वी हैव बिगन ए टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर
एग्जिस्टेंस, हम हमेशा से अपने एग्जिस्टेंस को भगवान का रूप समझते हुए आते हैं। द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डजंट नेसेसरी सिंगल आवर डिमाइज, और हमारी मृत्यु से इसकी प्रॉब्लम का कोई निवारण नहीं होता, बल्कि हमारी ये तो इसकी पासपोर्ट होता है इसके फ्यूचर के लिए। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये जो नया व्यू हमारे सामने आया है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस एरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अहम कदम है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू टू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than a dissociation collection of the part। हम पृथ्वी को अलग अलग करके ना देखें, बल्कि उसे एक साथ देखें, इंटीग्रेटेड में देखें, then it will be born for us। Industry had a more crucial role to play in the new era of responsibility। What transformation would be affected if more business shared of the view chair of the DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself with the company's chief environment officer। He said our continued constitution as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है जो है चेयरपर्सन ऑफ DuPont, मिस्टर एडगर। अब मिस्टर एडगर ने 5 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि दैट यस ह्यूमन बीइंग इज अंडर द नीड दैट इट विल यू कैन से लीड द मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स एंड इट विल एक्सेल इन द environmental performance। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of prime ministership, when she was the prime minister of America, none was passed decisively no into the current coin of the English usage of the felicitous word. No generation has a free hold on the earth. All we have a line in it on the repairing lease. In the word of Mr. Lister Brown, we are not inherited from our father, we borrowed it from our children। Now you can say मिसेस मार्गरेट थैचर हमें जो कहती हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टरशिप, वो कहती हैं कि किसी भी जनरेशन का यहाँ पर मालिकाना हक नहीं है, हम यहाँ पर किराएदार हैं जो हम यहाँ लीज पर ले कर रहते हैं। ऐसा ही कुछ लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी अमानत है जो हमारे बच्चों ने हमें उधार दी है, और जो हमारे फोर फादर्स के लिए उधार थी जो हमने दी थी। सो हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए और इसके प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर, यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर फेयर नोटबुक। यू फील एनी काइंड ऑफ you can say difficulty by correcting all these answers, then you can call me at any time।